front view. So here you can observe this. Now we're going to see some 3D object, three-dimensional object, how we can draw the three-dimensional object isometric view. Now, pyramid is the three-dimensional object with isometric view of base of pentagon pyramid standing on horizontal plane. So see, this is pentagon which is standing on the horizontal plane. How are you going to draw? See, this is top view. Top view here 30 degree and here 30 degree. This is the baseline L and D. Now see, we draw this rectangle 1432, 1432 like this. And now we're going to draw these 5 points on it. Okay, so here by making the diagonals, we get the center point and we get the axis. And now we get the pyramid. See, like this. Standing on the horizontal plane, height is added from the center of the pentagon. So whatever the height, we cut the height point and made all the corner point to the height point. Okay. Now isometric view of pentagonal prism lie on the HP. This is standing on the HP and this is lying of the HP means a face of hexagon pyramid. It is pentagon which is lying on the horizontal plane. See, now first we draw. See, this is the pyramid. And now, student, what you see? This is the prism, and here this is the pyramid. The basic difference between prism and pyramid. In the pyramid, only one face is there, and in the place of another place there is a point only. But in the prism, what happened? Two same face we can get like this. Okay, this is the pyramid. Why we don't draw this line? Because this is a hidden line. We can't see it. So if we want to draw this line too, we just draw by the dotted line. Now hexagon prism standing on the horizontal plane. Okay, see, we only draw these four lines. Because from this corner and this corner, these are the hidden line. Okay, so we don't need to draw. If we want to draw, then we draw these line by a dotted line.
Okay, see, okay, understand. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये हमने डार्क नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि दे आर नॉट विजिबल लाइन। We just draw it for the making easiness of the hexagon prism. Okay. Cylinder standing on the horizontal plane. Cylinder also a 3D object, and cylinder lying on the HP. तो अभी डिफरेंस देखिए, HP पे lying है and HP पे standing है. See, so what happened? We just make the circle same here and make some vertex line. Okay. This is the cylinder. We remove this side because this side is not visible. So if we want to make this completely, then go through the dotted line. Okay, now standing on horizontal plane. This. ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ये हिडन लाइन, इधर देखिए, लाइक this is the hidden line and here is this is hidden curve and here is also hidden curve. Okay, तो यहाँ पे इसको नहीं ड्रॉ करने का मीनिंग सिर्फ ये है कि ये हिडन है, ठीक ना? ये विजुअल नहीं होगा अगर हम इस व्यू में ऑब्जेक्ट करेंगे या फिर इस व्यू से ऑब्जेक्ट करेंगे। ये क्या कहते हैं कि आपका लाइन है, मीन्स इसका एक फेस वो हॉरिजॉन्टल फेस पे है और इसका टॉप या बॉटम जो भी है वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। दैट इज द डिफरेंस। ओके, और ये दोनों के दोनों क्या हैं कि आपके आइसोमेट्रिक व्यू हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। सो now half cylinder standing on the horizontal plane and half cylinder lying on the horizontal plane. Then what is the difference? See, the square is common here. See, okay, क्योंकि जो सेमी सर्कल हम ड्रॉ करेंगे या तो इधर से ड्रॉ करेंगे या फिर इधर से ड्रॉ करेंगे। हाउएवर, सी, सेमी सर्कल इधर बनाया और सेम सेमी सर्कल इधर बना दिया, मेट किया। नाउ देखिए क्या किया, ये रिमूव किया। क्यों? क्योंकि ये हिडन लाइन है। This is the hidden curve. Similarly, see, now we remove this because this is hidden line. Okay, so which line we not able to see from a particular view, that is the hidden curve or hidden line, and we don't show in the diagram or we don't show by the thick line. Only boundary line we can show by the thick line. Okay, see, okay, now we talk about the fulcrum.
व्हाट इज द फलक्रम? स्क्वायर फलक्रम। फलक्रम क्या होता है कि आपका जो पिरामिड होता है ना, उसको हम कट कर देते हैं। जो पॉइंट सेक्शन रहता है वो इसमें नहीं रहता है, हम टॉप से उसको कट कर देते हैं। दैट इज द फलक्रम। सी देखिए कि आपका स्क्वायर प्रिज्म था और स्क्वायर प्रिज्म को हमने इधर से कट कर दिया। जो पॉइंटेड पॉइंट था उसको हमने रिमूव कर दिया, जस्ट कर दिया। अभी इसको अगर हम मैच करते हैं तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिल जाता है, लेकिन वो पॉइंट हमने रिमूव किया। देन दिस प्रिज्म बिकम अ फुलक्रम। नाउ फ्रंट व्यू and this is top view. This is the orthographic projection. How are we going to draw this orthographic projection in isometric view? See, because for the both front view and top view, we need only one isometric view for three dimension. See, so now see, this is a prism, okay, but this is we going to draw a first row, okay. See, we got a point, 4 point, these 4 points. Okay, see, now we just made each corner. Okay, see, this is the fulcrum. So what happened? This is very easy. How we going to draw this? Okay, a horizontal line and take a line 30 degree from here. Take a line 30 degree from here, and we make a square here. We make a square here. Take here 90 degree angle and here 90 degree angle, and same square from this distance. Okay, so here this distance is given 20. Okay, so if this distance is not given, then definitely this angle is given. Okay, this angle is given. Okay, so this distance is given, there is no problem. So make this 60 mm length, there is 60 mm length, and from the center 20, 20, 20, and 20. This square is here, and we can make like this. Okay, this is about the frustum of a square pyramid. सर Okay, yes. सर हमें फर्स्ट व्यू एंड टॉप व्यू दी होती है और थर्ड एंगल निकालना होता है क्या ड्रॉ? नहीं नहीं, जब हम आइसोमेट्रिक की व्यू की बात करेंगे ना, तो हमको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया रहेगा। जैसे ये देखिए, आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया हुआ है ना, इसकी हेल्प से हमको ये आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। अभी इसके पहले जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे, तो एक थ्री डायमेंशनल पिक्चर दिया रहता था, जिसकी हेल्प से हमको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ड्रॉ करना रहता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन गिवन रहेगा और 3D व्यू आपको ड्रॉ करना रहेगा। जैसे इसमें आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू गिवन है, और ये आइसोमेट्रिक व्यू आपको ड्रॉ करना है। ठीक है ना। ओके सर। कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है, यानी थ्री डायमेंशनल अगर पिक्चर है, तो वो तब तक क्या कहते हैं कि आइसोमेट्रिक व्यू नहीं होगा, जब तक कि ये एज और ये एज इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है। अगर वो 30 डिग्री से ज्यादा या कम है, तो वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में नहीं आएगा, वो चेंज हो जाएगा पिक्चोरियल प्रोजेक्शन में। तो पिक्चोरियल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने का सबसे बेस्ट थिंग क्या है कि आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और 30 डिग्री, ये एंगल आपका 30 डिग्री रहेगा, एक ये लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर से 30 डिग्री रहेगा, एक ए लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप एक स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए,
तो उसके स्क्वायर के अंदर ही आप सारे ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो आपका रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, पेंटागन है, हेक्सागन है, सर्कल है, जो भी है वो आप स्क्वायर के अंदर ड्रॉ करेंगे तो बहुत इजी वे में आपका आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, पिरामिड जो होता है उसको जिस साइड से उसका पॉइंट रहता है उस साइड से ही सम डिस्टेंस पे हम उसको कट कर देते हैं तो वो फर्स्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट टर्म आपका है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका सारी डिस्टेंस दे दिया गया है। जैसे अगर ये आपको 20 गिवन नहीं होता यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इंक्लाइंड है ना, तो इंक्लाइंड का एंगल गिवन रहता, तो उसकी हेल्प से हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट थिंग्स इज प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ द पेंटागोनल। अभी स्क्वायर फुलकुम था, अभी आपका पेंटागोनल प्रिज्म आर गिवन, ड्रॉ इट आइसोमेट्रिक व्यू। तो अभी आपका प्रोजेक्शन दिया है, ये देखिए सेम आपका फ्रंट व्यू गिवन है, एसीडी फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू गिवन है। ठीक है ना, तो इसमें भी आपका देखिए ये आपका जो पेंटागन रहता है 40 दिया, मतलब इसकी जितनी भी साइड है वो सारी साइड कितनी है, 40 की रहेगी। और अपर जो जिधर से कट किया गया है वो कितना है, 20 है। ओके, तो सिमिलरली सेम थिंग्स करेंगे हम, है ना। यहाँ पे देखिए ये देखिए आपने ये लाइन, तो ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं इसका बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं रहता, ये रेफरेंस के लिए रहता है ना। तो इसको आप जितना चाहे उतनी लंबी ड्रॉ कर सकते हैं, छोटा चाहे छोटा ड्रॉ कर सकते हैं, बस हमको ये एंगल मेजरमेंट के लिए, एंगल ड्रॉ करने के लिए, एंगल लाइन ड्रॉ करने के लिए ये रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है ना, ये आपका 30 डिग्री एंड दिस साइड से 30 डिग्री। तो स्टैंडर्ड एचपी निकलनी है ना? हाँ सॉरी, क्या बोले, फिर से बोलिए। स्टैंडिंग एचपी निकलनी है ना? नहीं नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं गिवन है, आपको जस्ट आइसोमेट्रिक शो करना है। लाइन पोजीशन या फिर आपका स्टैंडिंग पोजीशन ऐसा कुछ गिवन नहीं है ना यहाँ पे, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, लाइन पोजीशन भी निकाल सकते हैं और स्टैंडिंग पोजीशन भी निकाल सकते हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि स्टैंडिंग पोजीशन ज्यादा इजी है इन कंपेरिजन टू लाइन पोजीशन, तो हम स्टैंडिंग पोजीशन, अगर कोई आपको कंपलसरी नहीं किया गया है कि आपको स्टैंडिंग पोजीशन ड्रॉ करना है या फिर लाइन पोजीशन ड्रॉ करना है, देन वी गोइंग चूज फॉर द स्टैंडिंग पोजीशन बिकॉज द स्टैंडिंग पोजीशन इज इजियर देन द लाइन पोजीशन। ओके, तो अभी फिर हमको क्या कहते हैं कि एक स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये स्क्वायर ड्रॉ हो गया। अब इसके इनसाइड हमको एक पेंटागन ड्रॉ करना है, कितने का, 40 mm साइड का। ठीक है, ये पेंटागन ड्रॉ हो गया। अभी क्या करना है कि ये लेंथ दिया हुआ है, तो हम 60 का, ये 40 है, तो अभी 60 का लेंथ हमको ड्रॉ करना है। ये देखिए सेंटर से कितना है, 60 का, ये ये जो सेंटर है यहाँ से हमको 60 का लेंथ लेना है। और ये हमने प्रोजेक्शन लाइन, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर से 60 है तो यहाँ से हमको 60 ही ड्रॉ करना है ना। ऐसा नहीं है कि सेंटर के इक्वल कर देना है, तो ही हम पेंटागन इजी वे में ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी ये देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने सारी 5 लाइन ड्रॉ किया है, क्योंकि जिसको हमको हिडन, यानी जो हिडन रहेगा उसको हम डार्क नहीं करेंगे और जो विजुअल रहेगा उसको डार्क कर देंगे। ठीक है ना, अभी यहाँ पे देखिए जैसे ये आपको ब्लू लाइन शो हो रही है, तो ये 2 लाइन डार्क है, ये साइड और ये साइड डार्क है, क्योंकि ये विजुअल रहेगी। 1 2 3, 3 साइड ये डार्क नहीं है क्योंकि ये हिडन रहेगी। ठीक है ना, हिडन लाइन हम दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, या तो बहुत ही थिन लाइन ड्रॉ कर दे जैसा ये है, या फिर डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दे, बोथ आर दी एक्सेप्टेबल। ठीक है ना, हिडन लाइन के लिए हम डॉटेड लाइन यूज करें या फिर बहुत ही थिन लाइन यूज करें, बोथ आर दी एक्सेप्टेबल। ओके, ठीक है ना। तो अभी ईच एंड एवरी पॉइंट से हमको वर्टिकली, मतलब ये जो लाइन है इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है।
जो ये जो एज है यहाँ से हमको इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है 60। तो यहाँ से 60, यहाँ से 60, इधर से 60, इधर से 60, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है कि ये सेम पेंटागन हमको यहाँ पे बना लेना है। ये देखिए सेम पेंटागन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर पे हमको 20 mm की साइड का पेंटागन चाहिए। अभी ये तो फुट सेम हो गया है ना 40 का, लेकिन हमको 20 का चाहिए। तो सेंटर से हमको 20 का पेंटागन ड्रॉ करना है। तो सेंटर हमने यहाँ पे भी फाइंड आउट कर लिया, ये इसका सेम सेंटर है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ 20। ये देखिए सेम कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से हमको सेम यही जो है, जैसे मैंने क्या बताया था ना आपको कि रिड्यूस स्केल और इन लार्ज स्केल, तो यहाँ पे सेम पेंटागन, ये देखिए सेम पेंटागन यहाँ पे हम रिड्यूस 1/2 के स्केल में बना लेना है। तो ये ऑटोमेटिक 20/20 का हो जाएगा। नाउ वी कैन मीट ईच कॉर्नर टू दी सेम कॉर्नर। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, देन दिस एंड देन दिस। ओके, तो अभी ये देखिए ये जितना भी डार्क ब्लू लाइन है, डार्क ब्लू लाइन, ये क्या है विजुअल लाइन है। और ये देखिए ये एज है, ये एज है, ये एज है। बाकी हम ये डार्क नहीं करेंगे क्योंकि ये विजुअल लाइन नहीं है, हिडन लाइन है। सम लाइन इज हिडन लाइन एंड सम लाइन इज प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है ना। तो बोथ आर दी थिन लाइन, ठीक है ना। तो उसको डार्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। एनी क्वेश्चन? ओके, ठीक है ना। तो मेन सारा फंडा जो आपका अराउंड है, क्योंकि पिछला जो हमने यूनिट स्टडी किया दैट इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, उसमें हमको एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट गिवन रहता था। उसकी हेल्प से हम टॉप व्यू, साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू ड्रॉ करते थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू या फिर साइड व्यू, ये तीनों प्रोजेक्शन दिए रहेंगे और आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना रहेगा। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का सबसे बेस पॉइंट है ये कि आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और फिर वहां से आपको 30-30 एंगल पे, मीन्स एक क्लॉकवाइज 30 डिग्री और एक एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री ड्रॉ करना है। ओके, ठीक है। तो अभी आपका कोन, जैसे फर्स्ट कम क्या है कोन का, जिसमें बेस क्या रहता है सर्कुलर रहता है। सेम थिंग देखिए सर्कुलर है। सेम सेम पैटर्न में हम जाएंगे, सेम पैटर्न में जाएंगे, कुछ भी चेंज नहीं करना है। फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, अभी इसको ड्रॉ करना है आपको। तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, देन 30 डिग्री फ्रॉम हियर 30 डिग्री। ओके, ठीक है। एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका स्क्वायर हो गया, ये देखिए। फिर यहाँ पे हमको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है इनसाइड, ऊपर भी ड्रॉ कर दिया। ओके, अभी हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये देखिए सर्कल और बॉटम साइड सर्कल शो किया आपने। यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया और सेम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये स्क्वायर क्यों बनाया है? ये स्क्वायर इसलिए बनाया है ताकि क्या कहते हैं कि हमको सर्कल ड्रॉ करना इजी रहे। क्योंकि ये स्क्वायर बनाएंगे तो एक ऐसा सर्कल हमको ड्रॉ करना रहेगा जो इसके सारे साइड्स को टच करता हुआ रहे। सिमिलरली एक ऐसा सर्कल बनाया है जो कि इसके सारे 4 फेस को टच करता हुआ जाए।
और उसके बाद हमको ये 4 पॉइंट में भी मिल जाएगा जिधर हम इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे 1 3। ठीक है ना। तो अभी हमने 3 क्वेश्चन तो देखे, ओके, जो कि सिमिलरली हैं, बस ऑब्जेक्ट चेंज हुए हैं। ठीक है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू गिवन है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू गिवन है, एंड सारे के सारे आपके फर्स्ट टर्म से रिलेटेड हैं। एक कोन का हुआ, एक पेंटागन का हुआ और एक स्क्वायर का हुआ। ठीक है ना। सेम मेथड, totally same, there is no difference between method. Okay, so see here, now we're going to do some exercise. Okay, problem, a square pyramid. ठीक है ना, प्रिज्म एंड पिरामिड इज डिफरेंट। पिरामिड में क्या है, हमको टॉप पे एक पॉइंट मिलता है, और प्रिज्म में टॉप पे जो बॉटम सरफेस रहता है वही टॉप सरफेस रहता है। तो पिरामिड ध्यान रखिए कि हमको टॉप पे एक पॉइंट मिलता है। A square pyramid of 30 mm base side and 50 mm long axis. It centrally placed on the top. Okay, 50 mm long is the isometric projection of the pair. ठीक है, बोल रहे हैं कि एक स्क्वायर पिरामिड है जिसको क्या कहते हैं कि एक क्यूब के अंदर रखा गया है, जिसकी साइड कितनी है, जिसकी साइड कितनी है 50 mm। ठीक है ना। तो अभी देखिए कि जो स्क्वायर का बेस है वो कितना है, 30 है। पिरामिड का बेस कितना है, 30 है, लेकिन किसके इनसाइड है, वो 50 mm क्यूब के इनसाइड है। ठीक है ना। तो जैसा क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसा आपका एक क्या नाम है, बॉक्स, किसी मेडिसिन की बॉक्स देखिए, सिरप की, वो क्या कहते हैं कि एक आपका स्क्वायर प्रिज्म रहता है, कंसीडर कर सकते हैं। आपका जो मेडिसिन या सिरप की जो बॉक्स है, कवर है, वो आपका एक स्क्वायर प्रिज्म रहता है, और उसके अंदर हम बोतल को फिट करते हैं। तो सेम यहाँ पे जो आपका बॉक्स है वो क्यूबिकल बॉक्स है। ठीक है ना, क्यूब है, और उसके अंदर हमने एक पिरामिड को इंसर्ट किया हुआ है। तो देखिए सेम, अभी यहाँ पे आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू कुछ नहीं दिया है, जस्ट आपको इमेजिन करना है कि एक क्यूब है। तो फर्स्ट हमको एक क्यूब इस वे में बना लेना है, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। ठीक है, सेंटर निकाल लिया। अभी ये देखिए, ये आपका कितना हो गया, 50 हाइट, 50 mm लॉन्ग एक्सिस इज सेंट्रली प्लेस ऑन द टॉप। क्यूब के टॉप में है, ये हमने क्यूब बना लिया, ये 50, ये 50, यहाँ पे सारी जो साइड से 50 50 50 साइड से, और इसके टॉप पे क्या है, ये आपका पिरामिड रखा हुआ है। ये देखिए, बहुत ही सिंपल है, फिर से ड्रॉ करते हैं। ये आपका सिमिलर रहेगा, एक बेस लाइन ड्रॉ किया, फिर इधर से 30 डिग्री, इधर से 30 डिग्री, स्क्वायर ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, ये स्क्वायर हुआ, फिर इसका हमने सेंटर फाइंड आउट किया, दिस इज द सेंटर। फिर यहाँ से 30 डिग्री, 30 mm, 30 mm, 30 mm का एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। सी, अभी यहाँ पे ये देख रहे हैं, आपका जो डार्क लाइन है, थिक लाइन है,
दिस रिप्रेजेंट द विजुअल एज, ठीक है ना। फिर यहाँ हमने क्या किया, ये आपका 50 mm का लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। और 50 यहाँ से पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया, ये किसके पैरेलल रहेगी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल रहेगी। ओके, सी दिस इज 50 नाउ। फिर क्या है, जितने भी कॉर्नर पॉइंट हैं यहाँ पे हम उसको मैच कर देंगे। सी, तो ये हमारा दिस इज, टॉप पे क्या है, पिरामिड हो गया, और बॉटम में क्या हो गया, क्यूब हो गया। सी, तो यहाँ पे जितनी भी विजुअल लाइन है वो डार्क है, और हमारा मेन जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, तो उसको हम थोड़ा और डार्क करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है क्योंकि हमको पिरामिड ड्रॉ करना है। ओके, सी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ट्रायंगुलर पिरामिड है। अभी जैसे पिरामिड हमने पिछला पिरामिड बनाया उसका बेस क्या था, स्क्वायर था, लेकिन अभी है ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है। ओके, एंड 50 mm लॉन्ग एक्सिस। ओके, इट इज सेंट्रली प्लेस ऑन द टॉप ऑफ क्यूब, यानी जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपका कंपोनेंट स्टैंड कर रहा है वो सेम है, पिछले क्वेश्चन में भी क्यूब था, इस क्वेश्चन में भी क्यूब ही है। तो बेस में हमको क्यूब ड्रॉ करना है, दैट इज फिक्स, ठीक है ना। और सेम डायमेंशन है 50 mm का, पिछली बार भी था, पिछले इस बार भी 50 mm का है। दोनों को कंबाइन करके हमको ड्रॉ करना है, जैसे पिछला था सेम, ये देखिए सेम ऐसा ही बनाना है। तो ये जो बेस है क्यूब, वो तो हमको सेम ही ड्रॉ करना है, ये देखिए। क्यूब ड्रॉ कर लिया, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 30 mm बेस, 30 mm बेस पे एक क्या है, ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल ड्रॉ करने से पहले इसका हम सेंटर, क्योंकि ये सेंट्रल प्लेस्ड है, तो सेंटर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि इसका यानी जो आपका एक ट्रायंगल होता है उसका सेंटर कहाँ पे होता है ये लोकेट किया गया है, इसलिए इसको यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। इसलिए एक ट्रायंगल का सेंटर किधर प्लेस होता है वो शो करने के लिए ये डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है। जो ये आपका हाइट है बॉटम से 1/3 डिस्टेंस पे रहता है। अगर ये टोटल पी सी एच है तो 1/3 एच पी ओ होगा, ठीक है ना। ये शो करने के लिए ये शो किया गया है, इसका सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, और ये पॉइंट, ये क्या है, ओ है, ये जो पॉइंट मिला हमको वो ओ है, ये देखिए। और उसके बाद ये पी है, ठीक है, ये डिस्टेंस। ओके, फिर पी से ये कितना हो जाएगा, ये लाइन जो है इस लाइन की पैरेलल रहेगी, इधर 50 इधर 15, 15 15 30 हो जाएगा। ए बी, ये देखिए ए बी हमको मिल गया। नौ, यहाँ से ये आपका सी पॉइंट, एंड देन वी कैन मेक दी सी पॉइंट। तो ये आपका क्या हो गया, सेंट्रली प्लेस रेक्टेंगल हो गया। नाउ टाइम टू हाइट, 50 mm हाइट, तो इसके सेंटर से ये 50 का लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, और ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, इसके पैरेलल लाइन, ठीक है, ये देखिए। फिर उसके बाद
हमको सारी एज मैच कर देना है। दिस इज द आंसर। ठीक है ना। अब आप ये सोचेंगे इसको हमने स्पेशली इधर क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि हमारा जो सेंटर होगा, ट्रायंगल का जो सेंटर है वो हाइट के मिड पॉइंट में नहीं रहता है। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हमको शो करके दिखाया गया है और यहाँ पे ये हमने ड्रॉ किया है। फिर से देखिए एक बार। ओके, ये तो सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन है कि हमने एक क्यूब ड्रॉ किया है। ओके, क्यूब ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आपको 30 एज का एक ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है, मतलब सारी साइड्स इसकी 30 ही है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ये शो किया गया है कि इस जो ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट है इसका सेंटर यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे हम इस फेस का सेंटर फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे जो सेंटर होगा उसको ओ नेम देंगे। क्या देंगे? ओ। और यहाँ से इधर कितना, 1/3 पी, पीसी का 1/3 कितना हो जाएगा? वो पी पॉइंट हो जाएगा। ओके, this is 15 and this is 15 and we just get the C point and draw the triangular shape. Now 50 height and make this. So this is our pair, two component, two three-dimensional component with one pair. Okay students, तो स्टूडेंट्स अभी आज आप लोग मैनुअल के लिए आने वाले हैं। तो अगर मैनुअल के लिए आप आने वाले हैं और मेरे पास जैसे थर्ड फोर्थ लेक्चर मेरा है, फिर फिफ्थ, हाँ 4 to 5 में फ्री हूँ, 4 to 5 में फ्री हूँ, तो आप लोगों को जो भी क्वेरी है देन यू कैन मीट मी बिटवीन 4 to 5 PM. I will solve your query. Okay. So next question. सॉरी। सर तो 5 से ये पहले कभी भी आएगा तो चलेगा ना? हाँ एक्चुअली बेटा मेरा थर्ड और फोर्थ लेक्चर है, फिर फिफ्थ लेक्चर भी मेरा है। आप आ सकते हो, अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी आपका प्रॉब्लम है, डाउट है। ठीक है ना। क्योंकि आज क्या है, मेरा लेक्चर ज्यादा रहते हैं, केवल 2 ही लेक्चर फ्री रहता है। एक सेकंड लेक्चर में अगर आप लोग आ सकते हो, मतलब 11 से 12 के बीच में, तो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोगों की टाइमिंग क्या है कॉलेज में आने की? 2 p.m. ओके, 2 PM। तो फिर हाँ, फिर आप हाँ मुझसे 4 बजे के बाद मिलिए। 4 से 5 मैं फ्री रहूंगा, मेरा लेक्चर भी Okay, नहीं sir. है। उस हाँ उसके बाद उसमें आपका जो भी क्वेरी है ना, हो सकता है ऑनलाइन में आपको उतना एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, देन वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखिए क्या है। अ स्क्वायर प्लेस इन द प्रीसेट थ्रू centrally by a cylinder which come out equally from both face, its front view and top view। ये देखिए आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू गिवन है। अभी इसका है आपको आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। वी हैव टू ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ दिस कंपोनेंट। तो ये आपका फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू है। अब इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे आइसोमेट्रिक व्यू में? ओके, सो सी बेस लाइन इज सेम, 30 डिग्री लाइन इज सेम। उसके बाद हम एक स्क्वायर भी ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए ये स्क्वायर है ये ना, तो ये स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये देखिए ये स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है। ये क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि हमको एक
सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ पे। देखिए सर्कुलर फेस है, ये देखिए सर्कल ड्रॉ करना है। स्क्वायर से सर्कल इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि प्रॉपर सर्कल बन सके। इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे, सेंटर पॉइंट इस लाइन का सेंटर पॉइंट, और इस लाइन का सेंटर पॉइंट, मतलब 1/4 सर्कल इधर, 1/4 सर्कल, 1/4 1/4, और टोटल मिलके हमको कंप्लीट सर्कल मिल जाता है। ठीक है ना। तो ये देखिए ये सिलेंडर ड्रॉ हो गया, और ये जितना था हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि ये जो इनसाइड जो भी एज है वो हमको विजुअल नहीं होगी। ठीक है ना। अभी ये देखिए जितना पोर्शन ऊपर है उतना ही पोर्शन नीचे है, जितना पोर्शन ऊपर है उतना ही पोर्शन नीचे है इस सिलेंडर का। ठीक है ना। ये देखिए तो ये जो प्लेट है वो यहाँ पे ड्रॉ हो गई, ये वाली प्लेट, और ये सिलेंडर है इन बिटवीन है, ये देखिए। ठीक है। बाई सिलेंडर कम आउट इक्वली फ्रॉम द बोथ फेसेस, यहाँ पे जितना है वो सेम यहाँ पे है। ठीक है ना। ऐसा मतलब आपका एक स्क्वायर प्लेट और एक सिलेंडर को कंबाइन करके ये ऑब्जेक्ट बनाया गया है। तो यहाँ पे डायमेंशन दी हुई, तो ये आपका 10 है, प्लेट की थिकनेस 10 हो गई, और यहाँ से ये 50-50 का है, तो ये 50-50 का स्क्वायर यहाँ पे है, और उसके बाद हाफ सिलेंडर हमने ऊपर बना दिया और हाफ सिलेंडर नीचे ड्रॉ कर दिया है। ये देखिए 30 का इधर, 30 का इधर, मतलब टोटल सिलेंडर की लेंथ कितनी हो गई, 70, क्योंकि 30 इधर, 30 इधर, और 30 सिलेंडर इनसाइड 10 का जो सिलेंडर है वो इनसाइड द स्क्वायर प्लेट है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज द 30, सॉरी 70। ओके। अभी ये प्रॉब्लम देखिए, सेम प्रॉब्लम है, दैट इज द सेम प्रॉब्लम, कोई भी चेंज नहीं है। बट व्हाट इज द चेंज, कि सिलेंडर की जगह पे हमने कोन फिट कर दिया है। क्या कर दिया, सिलेंडर की जगह कोन फिट कर दिया है। ठीक है ना। सेम स्क्वायर फेस है, ये देखिए आपका सेम स्क्वायर फेस है, और यहाँ पे आपका 40 है, वहां पे 50 था। दिस इज द डिफरेंस, मतलब स्क्वायर प्लेट सेम है, और यहाँ पे 40 का स्क्वायर है, वहां पे 50 का स्क्वायर था। तो सेम थिंग्स हम यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लेंगे, ये 40 mm का स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ठीक है ना। तो ये प्लेट थिकनेस कितनी हो गई, 10 mm। फिर ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ओके। अब इस सर्कल से हमको क्या करना है, एक सेंटर लाइन, यहाँ पे एक हमको सेंटर लाइन, और ये देखिए ये डिस्टेंस कितनी है इस सेंटर से, 30 डिग्री, 30 mm। तो 30 mm इसके सेंटर पे अगर करेंगे, और वहां से हम इसको मैच कर देंगे। अभी बॉटम की बात आई, तो बॉटम कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है ना। अब ये देखिए, तो ये जो आउटसाइड मतलब कोन का जो बेस है वो डायमीटर कितना है, 60 डिग्री, सॉरी 60 mm डायमीटर है। तो यहाँ पे एक हमको, ये देखिए यहाँ पे हमको एक ये, सर हाँ बोलिए। 60D मतलब 60D मतलब इसका डायामीटर बेटा, ये जो सर्कल है ना आउटसाइड सर्कल, इसका डायामीटर 60 है। ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं कि हम पाई 60 भी लिख सकते हैं। पाई दो हमारा सिंबल रहता है ना पाई का, ओ को हम 20 से एक लाइन से क्रॉस कर देते हैं, दैट इज पाई। तो पाई 60 लिखेंगे, दैट इज द सेम थिंग। 60D का मतलब होता है द डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल इज 60। ठीक है ना। अगर आर लिखा होता तो यहाँ पे 30 हो जाता, क्योंकि वो रेडियस को रिप्रेजेंट करता। ठीक है ना। इसका जो रेडियस है वो कितना है, 30 डिग्री है, सॉरी 30 mm है।
रेडियस। ओके, ठीक है ना। अभी सेम ऐसे ही प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। तो अभी ये देखिए आपका फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। तो अभी क्या दिख रहा है कि जो बेस है वो सर्कुलर है, और यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। अभी इसको ड्रॉ करना है तो सेम थिंग्स रहेगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर 30 डिग्री का हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ये ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो ये पूरा पैक हो गया यहाँ से यहाँ तक का। जैसे सेंटर पॉइंट ले लिया, ये क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ का ये देखिए ये कम है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का ये पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, देखिए ये पोर्शन 40 का यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ पे एक सर्कल है, बॉटम में भी एक सर्कल है। ये देखिए बॉटम पे भी एक सर्कल, ये देखिए ये वाला सर्कल, बॉटम सर्कल, और ये सेंटर का सर्कल। बॉटम का सेंटर कितना है, 50 डी। इनसाइड का सर्कल कितना है, ये वाला सर्कल 30 डी। मतलब इसका रेडियस 15 हो गया और इसका रेडियस 25 हो, ठीक है। अभी यहाँ से ये पोर्शन बनाना है, कितना, 40 वाला। ये देखिए ये भी आपका सिलेंड्रिकल हो गया। तो ये जितने का है उतने का ये है। अभी हमको ये स्लॉट कट करके दिखाना है, लेकिन यहाँ से जब देखेंगे तो ये स्लॉट दिखेगा नहीं, क्योंकि ये इनसाइड है ना। तो जितना पोर्शन फेस से दिख सकता है उतना हम शो करेंगे। सेंटर, ओके। तो ये देखिए ये स्लॉट है, यानी थ्रो आउट स्लॉट है। तो थ्रो आउट स्लॉट में अभी ये और ये इतना पोर्शन हमको डिलीट करना पड़ेगा। ये देखिए इतना और इतना पोर्शन में डिलीट कर दिया, तो ये थ्रो आउट स्लॉट हो गया। ये देखिए थ्रो आउट स्लॉट हो गया। और ये जो इनसाइड सेक्शन है वो भी हमको नहीं दिखेगा, इनसाइड एज। तो दिस इज द करेक्ट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये कॉम्बिनेशन का, ठीक है। ये आपका क्या है, फुलक्रम है, और फुलक्रम को सिलेंडर से ऐड कर दिया गया है, और उसके बीच में एक 10 mm का स्लॉट कट किया गया है। ओके, ठीक है ना। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। स्टूडेंट्स, एनी डाउट, देन सर यू कैन पिछली वाली आस्क योर स्लाइड क्वेश्चन। दिखाई ना। पिछला वाला क्वेश्चन दिखाना है या इसको रिपीट करना है? दिखाना है सिर्फ। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन ना। यस सर। ओके, ये देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका जो जैसे इसके पहले क्या था कि आपका ये जो आपका रेक्टेंगुलर प्लेट में के अंदर सिलेंडर फिट किया गया था। यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लेट के अंदर क्या है, एक कोन फिक्स किया गया है, और दोनों का कॉम्बिनेशन हमको ड्रॉ करके शो किया गया है। डिस्टेंस सेम है, क्योंकि अभी ये देखिए अगर हम इस क्वेश्चन में जाते हैं तो ये देखिए क्या है, कोन की जगह क्या है, ये सिलेंडर है, और ये डायमेंशन 50-50 की जगह 40 है। बस इतना ही डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में। बाकी जो रेक्टेंगुलर प्लेट है कॉन्सेप्ट सेम है, कि रेक्टेंगुलर प्लेट है उसके अंदर सिलेंडर था और यहाँ पे
कोन है। ओके, यहाँ पे एक जो है ड्रॉ करने के लिए रह गया, यहाँ पे एक सर्कल होगा ऐसा, क्योंकि ये सर्कल नहीं दिख रहा है ना, आपका कोन वाला सर्कल नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे एक ऐसा सर्कल होगा जैसे यहाँ पे है ना, सेम ऐसा रहेगा सर्कल। सर्कुलर प्लेट, ये आपका सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट के अंदर सेंटर, अच्छा स्क्वायर पिरामिड है। ओके, ठीक है, करेक्ट है। मुझे लगा ये कौन है, बट ये स्क्वायर पिरामिड है। तो ये आपका क्या कहते हैं कि सर्कुलर है, वहां पे आपका जो प्लेट था वो रेक्टेंगुलर था, यहाँ पे सर्कुलर प्लेट है। ओके, तो सर्कुलर प्लेट के ओके अंदर सर। एक, हाँ, पिरामिड फिक्स किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, या फिर आप लोग 4 o'clock पे आएंगे तो 4 o'clock पे आपके जो डाउट रहेंगे वो क्लियर करते हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर ये लेक्चर वर्ड प्रेस पर मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा ना। अभी क्या है कि मैं अपने टाउनशिप गया हुआ था, गांव गया हुआ था।